Okay, so today's our topic is cholesterol biosynthesis. What is cholesterol? कोलेस्ट्रॉल सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है? अटैक. एग्जैक्टली. व्हाट अटैक? टेररिस्ट अटैक, हार्ट अटैक. वेरी गुड. बिकॉज आफ्टर लिसनिंग दिस नेम ना कोलेस्ट्रॉल, सबके दिमाग में कुछ बैड थिंग आती है. इधर हार्ट अटैक, इधर स्ट्रोक मीन्स सेरिब्रोवैस्कुलर सम एक्सीडेंट समथिंग और समथिंग बैड. क्योंकि हमने आज तक कोलेस्ट्रॉल को क्या सुना है? इट्स अ बैड कंपोनेंट. तो फिर आज हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोसिंथेसिस. बायोसिंथेसिस मीन्स सिंथेसिस इनसाइड आवर बॉडी. तो बॉडी को क्या नीड आ गई ऐसा बेकार कंपोनेंट बनाने की? ये तो टॉपिक ही गड़बड़ हो गया. इट मीन्स दिस इज अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, then only body will synthesize it. Okay, so what is the biochemical importance of cholesterol? It is the major sterol in animal body. Okay, first thing, it is a major sterol. I will tell you what is sterol, and it is present in free form also in plasma. Yeah, come inside, come fast. Now no disturbance please. लास्ट में आपके सीनियर्स ने क्या कहा था? एंजॉयमेंट इज डिफरेंट थिंग बट डिसिप्लिन यू शुड मेंटेन. ओके, स्पेशली इन द क्लास. आपको बाहर जाके जितना एंजॉय करना है यू कैन डू, बट नॉट इन द क्लास. ओके ओके, सो इट इज फाउंड इन टू फॉर्म्स. फर्स्ट इज फ्री फॉर्म और सेकेंड इज बाउंड फॉर्म विथ एस्टर्स. ओके, कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स. We said cholesterol is a animal sterol. What is sterol? Sterol is a chemical structure. एक स्ट्रक्चर होता है, हमने उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया स्टेरॉल से. इसमें क्या होते हैं? इसमें होता है साइक्लोपेंटोन पर हाइड्रोफिनेंसिन रिंग. बहुत कॉम्प्लेक्स नेम है. इफ यू कैन रिमेम्बर इट्स वेरी गुड, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि केमिकल इसमें क्या क्या, इसके केमिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है. देयर आर 4 rings. 3 is, I will show this. You can see this diagram. There are 4 rings. 3 rings are cyclohexane ring. Is it visible? 3 rings क्या है? cyclohexane. 1 ring क्या है? cyclopentane. So if there are 4 rings, 3 is cyclohexane, 1 is cyclopentane, and 1 branched chain, branched methyl chain. You can see from 17 to 26 it's branched methyl chain. This structure is called sterol, and cholesterol is a animal sterol because it contains this type of chemical structure. Okay, so you should know something about cholesterol structure. It has cyclopenton per hydrofinansin ring with OH group on which carbon? कौन से कार्बन पे OH ग्रुप है? थर्ड कार्बन पे. डबल बॉन्ड किसके बीच में है? C5 एंड C6 के. एंड देयर इज ब्रांच एलिफेटिक साइड चेन. ओके, अटैच्ड ऑन द C17. गॉट इट? एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर? टोटल हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 27. You should know cholesterol contains 27 carbon molecule. So this is the structure of cholesterol. Okay, and it is, हो गया वेलकम इनका, पढ़ें. It is amphipathic in nature. Amphipathic means लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक. ओके, वन एंड इसका लिपोफिलिक होता है, वन एंड इसका हाइड्रोफिलिक होता है. ओके, अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल के सारे कार्बन कहां से आते हैं? लास्ट लाइन, acetyl coenzyme. What is acetyl coenzyme? So what we have read, cholesterol is an animal sterol. It is important, necessary, that is why body need to synthesize it. Second thing, हमने इसका स्ट्रक्चर देखा. It is a sterol structure. 4 rings होती हैं, 3 होती है हमारी cyclohexane and 1 is cyclopentane. Now what is the site where it synthesized? It is synthesized in all the nucleated cells. All the nucleated cells of the body synthesize cholesterol. Okay, especially liver,
एड्रिनल्स, टेस्टिस, इंटेस्टाइन, सारी सेल्स सिंथेसाइज करती है कोलेस्ट्रॉल को. ओके, एंड व्हाट इज द लोकेशन? इफ वी टॉक अबाउट सेल, इनसाइड द सेल व्हाट इज द लोकेशन? क्या क्या लोकेशंस होती है? इधर साइटोसॉल, माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, सो मेन लोकेशन इज साइटोसॉल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, at least site you must know cytosol and endoplasmic reticulum. Okay, why? Because there are some enzymes that are present on endoplasmic reticulum, so we involve both the sites, cytoplasm and endoplasmic reticulum. Okay. Okay, if we talk some energetics, acetyl coenzyme A provides all the carbon atoms. How many carbon atoms? 27, and it is provided, these all carbons are provided by acetyl coenzyme A. Reducing equivalents, NADPH. कहाँ से आता है NADPH? Very good. HMP shunt से. Okay, that shunt provides us NADPH. ये क्वेश्चन भी होता है कि HMP shunt के प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? What are the products of HMP shunt? It is very important pathway. पेंटोस शुगर मिलती है. सेकेंड थिंग क्या मिलता है? NADPH. And you have, I think, read that NADPH is required for fat synthesis. Okay, NADPH is required for fat synthesis. ATP provides energy for production of one molecule of cholesterol. You can remember this: 18 moles of acetyl coenzyme A, 36 moles of ATP and 16 moles of NADPH are required. There are some stages, main stages. It's very big pathway. You can't remember each and every step. So at least you should remember main steps. There are 5 steps. Actually, there is one process to remember each and every metabolic pathway. Come inside. अच्छा, sit down. जो भी metabolic pathway होता है, if you can't remember one by one step wise, at least you should know कि start कहाँ पे होता है और इसका end product क्या है. At least this thing you should know. Okay, why are you laughing? Yeah, come on. So there are main 5 steps. Synthesis of HMG coenzyme A. Second is formation of mevalonate. Third is production of isoprenoid units. Fourth is synthesis of squalene. And fifth is conversion of squalene to cholesterol. Okay, अभी आपको नहीं, अभी समझ में आएगा. हम इसको जब डिस्कस करेंगे then only will come to know. Okay, हम स्टार्ट करते हैं इस पाथवे को. So ये कहाँ से स्टार्ट होगा पाथवे? एसिटाइल कोएंजाइम ए से. नाउ यू टेल मी फ्रॉम वेयर इट कम्स. एसिटाइल कोएंजाइम ए पायरुवेट से आता है. ओके, विच साइकिल? ओके, पायरुवेट कम्स फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट मिला. पायरुवेट से क्या बना? वेर? साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया? नो, इट इज फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया. सो जितना भी बॉडी का एसिटाइल कोएंजाइम में पूल होता है वो कहाँ स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. अच्छा, और एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ से मिलता है? वेरी गुड. हु सेड बीटा ऑक्सीडेशन? वेरी गुड. सेकेंड, हमें एसिटाइल कोएंजाइम का पूल मिलेगा बीटा ऑक्सीडेशन से. व्हाट इज द प्लेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन? साइटोसॉल. आर यू राइट? साइटोसॉल और माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, तो जितना भी हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्म हो रहा है, कहाँ फॉर्म हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में. एंड वी आर टॉकिंग दैट दिस प्रोसेस इज अकरिंग इन साइटोसॉल. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जो एसिटाइल कोएंजाइम है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल. एसिटाइल कोएंजाइम में बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे में इंटरमीडिएट होता है. बहुत सारी मेटाबॉलिक पाथवे में ये सब्सटेंस होता है. इससे बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. बट देयर आर सम रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो डिसाइड करती है कि एसिटाइल कोएंजाइम के कितना पार्ट से कोलेस्ट्रॉल बनेगा, कितने पार्ट से कीटोन बॉडीज बनेगी, एंड एसिटाइल कोएंजाइम में इटसेल्फ कितना बनेगा. ओके, आपने देख लिया. आपको पता है कि ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम में से. तो दिस क्वेश्चन शुड कम इन योर माइंड कि ये कहाँ से आया? एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ से आया?
So it came from beta oxidation and glycolysis. सारा पूल कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में. ओके, तो कब बनेगा सिंथेसिस? कब होता है बॉडी में किसी भी चीज का सिंथेसिस? कब होता है? जब बॉडी फैट स्टेट में होती है. फैट स्टेट मीन्स बॉडी के पास इनफ एनर्जी होती है. सबसे पहले बॉडी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स फुलफिल करती है. मेटाबॉलिक नीड में जो हमारे रूटीन के मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं या रूटीन का जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है उसे फुलफिल करती है. अगर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है देन ओनली बॉडी विल थिंक ऑफ सिंथेसाइजिंग सम प्रोडक्ट्स. ओके, सो कोलेस्ट्रॉल कब बनेगा? जब बॉडी के पास अच्छे से एनर्जी पूल होगा. एनर्जी पूल मीन्स एटीपी. ओके, एंड व्हाट अबाउट एएमपी? एएमपी शोज लेस एनर्जी पूल और हाई एनर्जी पूल? less energy pool. So there are two things, one is hormone, second is energy. AMP और ATP they decide कि एसिटाइल कोएंजाइम में से क्या बनना चाहिए. ओके, so mitochondrial pool of एसिटाइल कोएंजाइम में it should go in साइटोसॉल. इसको साइटोसॉल में जाके कुछ सिंथेसिस करना चाहिए और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कर देना चाहिए? क्या हो जाएगा? क्रेब्स साइकिल से एटीपी फॉर्म हो जाएगा. इफ देर इज एनर्जी स्कैरसिटी तो नो नीड ऑफ एनी सिंथेसिस. पहले अपनी बेसिक नीड फुलफिल करता है बॉडी. ठीक है, तो क्या होगा? एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड इट विल नॉट गो इनटू साइटोसॉल. ओके, इफ देर इज प्लेंटी ऑफ एनर्जी, एटीपी बहुत एक्सेस में है, देन व्हाट विल हैपन? दिस एसिटाइल कोएंजाइम विल एंटर इनटू साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ सिट्रेट. ओके, एसिटाइल कोएंजाइम में सीधा माइटोकॉन्ड्रिया से परमिएबल नहीं होता है. फर्स्ट इट फॉर्म्स साइट्रेट. साइट्रेट विल एंटर इनटू साइटोसोल, देन सम lysis process occur and it will convert into acetyl coenzyme A. Okay, and one hormone that is insulin. Insulin will decide कि how much acetyl coenzyme A should go out of mitochondria. Okay, so insulin is a कैटाबॉलिक हार्मोन और एनाबॉलिक हार्मोन. इंसुलिन क्या है? गुड हार्मोन है, बैड हार्मोन है? गुड हार्मोन. इंसुलिन इज ए एनाबॉलिक हार्मोन. सो इन द प्रेजेंस ऑफ हाई इंसुलिन इन ग्लूकागॉन रेशियो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अकर्स. ओके, और इन द प्रेजेंस ऑफ लो इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशियो इट विल नॉट एंटर इनटू साइटोसॉल और क्या हो जाएगा? either ATP will form or second thing ketone bodies will form. क्या क्या बन जाएगा इससे? ATP और ketone bodies. There are two types of pool, cytosol pool and mitochondrial pool. Okay, so if we talk about this pathway, first step is two molecules of acetyl coenzyme A will condense in the presence of thiolase enzyme and what will form? Acetoacetyl coenzyme A. Okay, so then HMG coenzyme synthesis enzyme will come. Second step is acetoacetyl coenzyme A से क्या बनेगा? HMG coenzyme synthesis की प्रेजेंस में 3-hydroxy 3-methyl butyryl coenzyme A or in the short form we can say HMG coenzyme A. Okay, so till here ketone body synthesis and cholesterol synthesis steps are same. यहां तक की स्टेप कीटोन बॉडीज में और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में सेम होती है. बट व्हाट इज द डिफरेंस? फिर क्या डिफरेंस होता है? साइट का डिफरेंस होता है, एंजाइम्स का डिफरेंस होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ HMG कोएंजाइम सिंथेटेज. ये दो आइसो एंजाइम्स होते हैं. वन इज प्रेजेंट इन साइटोसोल एंड अदर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया. So that is present, जो एंजाइम साइटोसोल में प्रेजेंट है that will take part in cholesterol synthesis and other isoform that is present in mitochondria that will take part in ketone bodies synthesis. कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है. Actually I made a mistake. मुझे आपके सीनियर्स को पहले एंटर होने नहीं देना चाहिए था. Yes मैम ना? Next time I will take care of this. ठीक है? तो आई शुड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. ओके, अब किससे पूछना? स्टार्ट करें क्वेश्चन पूछना. समझ में नहीं आ रहा है तो आने लग गया ना अब? ठीक है, वेरी गुड. लुक, डोंट टॉक
एक्चुअली दीज आर वेरी की पॉइंट्स जो आपको अगर नहीं पता है, आपको मेटाबॉलिज्म नहीं समझ आएगा. अगर आपको एसिटाइल कोएंजाइम का फेट नहीं पता है कि ये किस किस पाथवे में एंटर हो सकता है, तो आप बस गोल गोल घूमते रह जाओगे पाथवेज के साथ साथ, आपको कुछ समझ नहीं आएगा. सो बच्चों, दीज आर की पॉइंट्स दैट यू मस्ट नो. आपको पता होना चाहिए कि एसिटाइल कोएंजाइम किससे रेगुलेट होता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, क्या क्या फॉर्म कर सकता है. ओके, so the two pathways are distinct. Ketone bodies are produced in mitochondria while cholesterol synthesis occurs in cytosol. They exit two pools of HMG coenzyme in the cell. Okay, two isoenzymes I have told you. Okay, the cytosomal enzyme is involved in the cholesterol synthesis, whereas the mitochondrial involved in ketone body synthesis. Actually what happens, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्म्स कीटोन बॉडीज, जो कि हमारी बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है. कीटोन बॉडीज कौन सा ऑर्गन यूज करता है एज एनर्जी? ब्रेन. वेरी गुड. सो इन स्मॉल अमाउंट में कीटोन बॉडीज हमारी बॉडी में फॉर्म होता है, दैट इज यूज्ड बाय ब्रेन. बट इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, उसमें क्या होता है, कीटोन बॉडी का सिंथेसिस बहुत एक्सेस में हो जाता है. कीटोएसिडोसिस, हैव यू हर्ड दिस नेम? It is a complication of diabetes mellitus. Okay, so what happens जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस बढ़ जाता है and it will come into blood and it causes ketoacidosis. Okay, तो कहां तक हमने देख लिया था, HMG कोएंजाइम में फॉर्म हो चुका था. ठीक है, इन द साइटोसॉल. अब यहां तक के दोनों पाथवे सेम थे. नाउ this pathway will different. Okay, so HMG coenzyme reductase is the rate limiting enzyme in the cholesterol biosynthesis. This is a very important enzyme. It itself come as a short note, regulation of HMG coenzyme reductase. Okay, तो हमने देखा यहाँ तक सारे पाथवे सेम थे. अब ये जो हमारा एंजाइम आया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, HMG coenzyme reductase, because all the regulatory mechanism occur in this steps. अगर हमें कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करना है, हाउ मच कोलेस्ट्रॉल वी नीड, हाउ मच इट शुड फॉर्म, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये वाली स्टेप एंड दिस एंजाइम. सो HMG coenzyme A, in the presence of HMG coenzyme reductase, it will form mevalonate, and here we need two molecules of NADPH, reducing equivalents. Here we need, so you can see statins. Statins are some drugs we'll discuss in biochemical importance. So ये drugs भी यहीं पे एक्ट करती हैं. फीडबैक इनहिबिशन भी इसी स्टेज पे होता है. लास्टली we will read रेगुलेशन. दैट टाइम you will know कि ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, क्योंकि सारा रेगुलेशन बॉडी का कोलेस्ट्रॉल का इसी स्टेप के थ्रू होता है. ओके, सो mevalonate has formed. Now what is the next step? This is the isoprenoid units, formation of isoprenoid units. So just you remember this, that mevalonate undergo phosphorylation 3 steps. There are 3 steps of phosphorylation. 3 ATP molecules are required, kinases are required. As you know, फॉस्फोराइलेशन के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? काइनेज. ओके, सो 3 kinases we required, 3 molecules of ATP will required, and lastly we will get this is isopentenyl diphosphate. Okay, so this is the molecule. Okay, last में. Okay, this is the molecule. Okay, and after condensation of IPP, isopentenyl phosphate, DPP, dimethylyl diphosphate molecules, इन सब के कंडेंसेशन से लास्ट में क्या बन जाएगा? स्क्वेलिन. लास्टली यू सी स्क्वेलिन. स्क्वेलिन विल फॉर्म, इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, 30 molecules of कार्बन आर देयर. ओके, ये हमारा कौन सा मॉलिक्यूल बना? स्क्वेलिन इज अ लीनियर स्ट्रक्चर. ओके,
Now, as you know, cholesterol is a cyclic component. Okay. तो अब क्या हमें steps necessary है? Cyclization. Okay. Conversion of squalene to cholesterol. Squalene undergo oxidation by epoxidase using molecule oxygen. Oxidation हो रहा है तो क्या require होगा? Oxygen molecule and NADPH to form squalene epoxide. Cyclases convert it to 30 carbon lenestrol. It is the first steroid component synthesized. Okay, lenestrol is the first steroid component और इसके modification से lastly क्या बन जाएगा? Cholesterol. Now there are some steps cutting and lastly we will see from lenestrol there is zymosterol, then cholestyrdinol, then desmesterol and lastly what will form? Cholesterol. Okay, after some isomerization, okay, some cutting, okay, because we need 27 molecules and squalene is a 30 molecule compound, so lastly we'll get cholesterol. This is the actual pathway or full pathway. अब स्टार्ट कहां से हुआ था कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस? कहां से स्टार्ट हुआ था? एसिटाइल कोएंजाइम में क्या बना था फर्स्ट स्टेप में? एसिटो-एसिटाइल कोएंजाइम है. 2 molecules of acetyl coenzyme A will form aceto-acetyl coenzyme A in the presence of which enzyme? Thiolase. Okay. Then what will form? फिर क्या बनेगा? HMG coenzyme A in the presence of HMG coenzyme A synthetase. Okay. यहां तक की जो सारी प्रोसेस थी that are same in both the pathways. Okay. Then what will form? Mevalonic acid. And कौन सा एंजाइम यहाँ यूज हो रहा है? HMG coenzyme A reductase. It is a rate limiting enzyme. All the regulations occur through this step. Okay. फिर क्या बनेगा? Then you can say pentenyl units will form. Then squalene cyclization से क्या बनेगा? lenesterol. This is the first sterol compound. Then ultimately what will form? Cholesterol. Okay. At least these steps you should know. अगर ये आपके क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए. नाउ वी कम टू रेगुलेशन. आप कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ेंगे, रेगुलेशन ये 4 टाइप से ही होता है. ओके. ये बहुत कॉमन है. अगर आपको एक बार इसको आपने अच्छे से इसको समझ लिया तो आप ईच एंड एवरी मेटाबॉलिक पाथवे में यू कैन राइट दिस. ओके. सो फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन. One is competitive inhibition. What is competitive inhibition? There is some structural similarity. Competitive inhibition क्या होता है? जब दो मॉलिक्यूल में structural similarity होती है and enzyme get confused कि on which molecule I should react, this molecule or that molecule. So that is called competitive inhibition. So one is competitive inhibition. Feedback inhibition क्या होता है? What is feedback inhibition? The product will stop the further process. Okay. Third is covalent modification. What is covalent modification? Attachment of some molecules to covalent bond. Okay. किसी भी चीज का modification क्या होगा? There are some attachment, either CO2 group, either phosphate group. So what happens in all the enzymes? There are some types of covalent modification. सबसे main क्या होता है? Phosphorylation and dephosphorylation. मेन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन एंजाइम्स में क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन. एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम. कुछ एंजाइम फॉस्फोराइलेशन पे एक्टिवेट होते हैं और कुछ एंजाइम डीफॉस्फोराइलेशन पे एक्टिवेट होते हैं. ओके. सो अकॉर्डिंगली कि एंजाइम को हमें एक्टिवेट करना है या इनहिबिट करना है, इनका कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हो जाता है. आइदर दीज एंजाइम विल एक्टिवेट और डीएक्टिवेट. ओके. थर्ड इज स्टेरॉल मीडिएटेड रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. एंड लास्टली हम कहां से रेगुलेट कर सकते हैं? एट द लेवल ऑफ इनिशिएशन, जहां से एंजाइम बन रहा है. इट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस. ओके. हम बिल्कुल इनिशिएशन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं. तो ईच एंड एवरी मेटाबॉलिक पाथवे या जहां पे भी रेगुलेशन होगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेगुलेशन. दीज आर कॉमन फॉर ऑल द मेटाबॉलिक पाथवे. फर्स्ट इज competitive, feedback, covalent modification and at the level of transcription. First we'll see feedback.
Who will give feedback inhibition? First thing is cholesterol. Who will give feedback inhibition? Cholesterol. Second is mevalonate, because mevalonate is an immediate product of this step. Okay, so mevalonate and cholesterol will give feedback inhibition. ज्यादा बनेगा, it will come and inhibit this pathway further. Okay, so these two products will give feedback inhibition. Now covalent modification. Phosphorylation decreases the activity of reductase. इन केस ऑफ रिडक्टेज, अगर हम रिडक्टेज की बात करें तो फॉस्फोराइलेशन क्या करेगा? HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज को डीएक्टिवेट करता है. अगर हमने HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज एंजाइम में हमने फॉस्फोरस मॉलिक्यूल ऐड कर दिया तो इट विल डीएक्टिवेट. एंड देयर आर टू हार्मोन्स, वन इज इंसुलिन एंड अदर इज ग्लूकागॉन. मेटाबॉलिज्म में जो मेन रेगुलेट होती है, किसके थ्रू रेगुलेट होती है? इन दो, mainly these two hormones, insulin and glucagon. So insulin will do dephosphorylation of all the enzymes. Insulin क्या करता है? सारे एंजाइम्स का डीफॉस्फोराइलेशन करता है. एंड ग्लूकागॉन क्या करता है? सारे एंजाइम्स का फॉस्फोराइलेशन करता है. अब ये नहीं पता, कुछ एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ एक्टिवेट हो जाते हैं. अकॉर्डिंगली ये फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन करते हैं. सो इन दिस केस phosphorylation will decreases the activity of reductase. So who will do phosphorylation? Glucagon. So in this case glucagon will come and it will deactivate. Glucagon कब एक्टिवेट होता है? फास्ट स्टेट में, जब बॉडी में एनर्जी कम होती है तब ग्लूकागॉन एक्टिवेट होता है. एंड व्हाट इट से? इट सेज नो नीड ऑफ कोलेस्ट्रॉल. फर्स्ट लेट मी फुलफिल द एनर्जी डिमांड. हमें कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की जरूरत नहीं है, हमें पहले एटीपी की जरूरत है. तो नो नीड ऑफ फॉर्मिंग कोलेस्ट्रॉल. तो ये फर्स्ट क्या कर देगा? एंजाइम को ही फॉस्फोराइज करके डीएक्टिवेट कर देगा. ओके, एंड दिस एसिटाइल कोएंजाइम विल एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल एंड इट विल फॉर्म एटीपी. ओके, ग्लूकागॉन फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिव फॉर्म, हेंस डिक्रीजेस द रेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. इन कॉन्ट्रास्ट इंसुलिन, इफ इंसुलिन आर मोर, इंसुलिन हार्मोन कब ज्यादा होगा? जब बॉडी के पास फैट स्टेट में होगी, बॉडी अच्छा खासा एनर्जी होगा, तो इट डज नॉट रिक्वायर एटीपी. तो अब इंसुलिन क्या कहेगा? ओके, यू कैन सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल. आपको जो सिंथेसिस करना आप कर लो, इधर प्रोटीन, इधर कोलेस्ट्रॉल, इधर फैटी एसिड, वॉट एवर यू वॉन्ट, इधर ग्लाइकोजन. आपको जो सिंथेसिस करना है यू कैन सिंथेसाइज. ओके, सो इट विल डीफॉस्फोरिलेट दिस एंजाइम and this pathway will activate और क्या बन जाएगा? कोलेस्ट्रॉल. एक्चुअली इंसुलिन इज अ एनाबॉलिक हार्मोन. इसीलिए नॉर्मल बॉडी में जब इंसुलिन नॉर्मल होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमारी बॉडी में सारे एनाबॉलिक पाथवेज नॉर्मली रेगुलेट होते हैं. इन केस ऑफ डायबिटीज व्हाट हैपन्स? जब इंसुलिन कम हो जाता है बॉडी का सारा ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है. नॉट ओनली कि हमारी ग्लूकोज बढ़ जाती है, पर ग्लूकोज कहाँ से आती है? वो ग्लूकोज आती है हमारी ग्लाइकोजन से, ग्लूकोज आती है हमारी फैटी एसिड से, ग्लूकोज आती है हमारी अमाइनो एसिड से. सब चीज बॉडी में ब्रेक डाउन होके क्या बनाने पे मजबूर हो जाती है? ग्लूकोज. ओके, एंड इट विल बिकम ए विशियस साइकिल. ओके, सो इंसुलिन इज अ गुड हार्मोन. तो यहाँ पे हमारा इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन विल रेगुलेट द पाथवे. नाउ एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन व्हाट हैपन्स? डीएनए में बहुत सारे फैक्टर सेगमेंट्स होते हैं. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स. ईच सेगमेंट किसके लिए होता है आपके? ओके, ईच सेगमेंट एक जीन के लिए डिसाइड होता है. ओके, बाय दैट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, अगर उस सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन हुआ है तो दैट स्पेसिफिक जीन विल फॉर्म. यही होता है ना? क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? हर एक फिक्स पॉइंट पे कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है एंड दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन through transcription will convert into either protein, either enzymes or some element or some signals. Okay, इसी तरह से हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होती है. तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे अगर हमें इसको बढ़ाना है, सपोज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को, तो व्हाट विल, हमें क्या नीड होगी? हमें ये एंजाइम ज्यादा चाहिएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन इसका एंजाइम का बढ़ जाएगा. तो मैसेंजर जो आरएनए है इस एंजाइम का वो बढ़ जाएगा, मैसेंजर आरएनए से इसका ट्रांसलेशन बढ़ जाएगा एंड दिस एंजाइम विल फॉर्म. और अगर हमें कोलेस्ट्रॉल को स्टॉप करवाना है सिंथेसिस को, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें उसका ट्रांसक्रिप्शन ही रोकना पड़ेगा. ओके, सो दैट एंजाइम कुड नॉट फॉर्म. सो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स. ओके, एलिमेंट्स. and some regulatory proteins will form and it attached to the elements. okay, और ये या तो ट्रांसक्रिप्शन बढ़ा सकती है और डिक्रीज कर सकती है. so in case of HMG coenzyme reductase there are one SREBP. okay, so what is the full form of SREBP? sterol, last line, sterol regulatory element binding protein. so it will attach on, ये प्रोटीन कहीं फॉर्म हो रही है और ये प्रोटीन आके किस पर अटैच होगी? ऑन द डीएनए. ओके, दिस प्रोटीन विल एंटर इनटू न्यूक्लियस एंड इट विल अटैच ऑन डीएनए. और डीएनए को इसका क्या कहेगी? ट्रांसक्रिप्शन एनहेंस कर दो, बढ़ा दो. ओके, और ओके, नाउ सी दिस. This transcription factors bind to a short DNA sequence called the sterol regulatory element. I told you there are so many types of elements. जितनी भी जीन्स होती हैं सबके एलिमेंट्स फिक्स होते हैं कि अगर वहां पे एनहेंसर्स अटैच हो गए तो इट विल एनहेंसेस द ट्रांसक्रिप्शन. सो इट विल अटैच टू एलिमेंट एंड इन इट्स इनएक्टिव स्टेट. इनएक्टिव स्टेट में क्या होगा? जनरली ये एनकॉर्स्ड रहता है, ठीक है. और एक्टिव स्टेट में क्या होगा? इट विल कम आउट एंड प्रोटीन विल अटैच टू इट, ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाएगा एंड रिडक्टेज विल फॉर्म. ओके, और इन केस जब हमें कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कट डाउन करना होता है, व्हाट विल हैपन? लाइसिस एंजाइम विल कम और ये इस प्रोटीन का लाइसिस कर देगा. तो ये प्रोटीन किस पे एक्ट नहीं कर पाएगी? एलिमेंट पे, जो इसका बाइंडिंग एलिमेंट है उस पे ये एक्ट नहीं कर पाएगी. ओके, एंड फर्स्ट वी रेड ना कॉम्पिटिटिव इनिबिशन. दिस इज वेरी यूजफुल बिकॉज थ्रू दिस फ्रॉम आउटसाइड बाय मेडिकेशन वी कैन रिड्यूस दिस प्रोसेस. इफ एनी केस किसी पेशेंट में अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा है तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं? थ्रू दिस स्टेप. देयर आर सम मेडिसिन, दे आर कॉल्ड स्टैटिन ग्रुप. इस ग्रुप की मेडिसिन क्या होती हैं? इनकी स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी होती है थ्रू सब्सटेंस और एंजाइम विल गिव कॉम्पिटिटिव इनिबिशन. ठीक है, statins, so have you heard this name, statins? okay, levastatin, simvastatin, there are so many groups. so you can see HMG coenzyme reductase सारा रेगुलेशन यहीं पे हो रहा है. कौन कौन सा? इधर फीडबैक, इधर ट्रांसक्रिप्शन, इधर कॉम्पिटिटिव एंड वन मोर इधर कोवेलेंट मॉडिफिकेशन. ओके, अब करना क्या है? क्यों बनाया कोलेस्ट्रॉल हमने? जब ये बैड है हमें तो और स्टेटिन लेनी पड़ जाती है. हाँ, घी तेल कम करना पड़ जाता है. क्यों बना रही बॉडी? बिकॉज इट नीड्स फॉर सिंथेसाइजिंग वेरियस बाय प्रोडक्ट. क्या क्या बनाता है कोलेस्ट्रॉल? वाइटामिन पढ़ लिया आप लोगों ने? वेरी गुड. वाइटामिन डी, प्रीकर्सर ऑफ वाइटामिन डी इज डाईहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल. विटामिन डी का प्रीकर्सर क्या होता है? विटामिन डी कहाँ बनता है? इन विट्रो, मतलब बॉडी में, सॉरी, कहाँ बनता है? स्किन में. रिमेंबर और नॉट? स्किन में बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज. किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल से. ओके, आप विटामिन डी आज जाके अपना देखना, ठीक है, कि यहाँ का इनिशिएशन कहाँ से होता है इसका विटामिन डी का? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ओके, वहां से इसका इनिशिएशन होता है विटामिन डी का. ठीक है, व्हाट एल्स? और क्या बनता है विटामिन डी, सॉरी, कोलेस्ट्रॉल से? क्या बनता है? बाइल सॉल्ट. क्या बनता है कोलेस्ट्रॉल से? बाइल सॉल्ट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट? क्या फंक्शन होता है बाइल सॉल्ट का? इमल्सिफिकेशन, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट. और क्या बनता है कोलेस्ट्रॉल से? वेरियस स्टेरॉइड हार्मोन्स. नेम द स्टेरॉइड हार्मोन्स. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल. दीज आर ऑल स्टेरॉइड हार्मोन्स. आपने देखा था इनिशियली व्हाट वाज रिटन देयर? इन लीवर, इन इंटेस्टाइन, इन एड्रिनल ग्लैंड. Esterol is synthesized especially. Why in adrenal gland?
क्या बनाती है एड्रिनल ग्लैंड? स्टेरॉइड हार्मोन्स, इसलिए वहां पे कोलेस्ट्रॉल की नीड होती है। इन सब हार्मोन्स के जो इनिशिएशन पाथवेज होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से। ओके, so it is necessary for formation of vitamin D. Second is steroid hormones. Third is bile salts, and one more thing is it is incorporated in the cell membrane. Cell membrane किससे बना होता है? Phospholipids and cholesterol, some glycolipids, some glycoproteins. Okay, so cholesterol जो होता है, phospholipid is a very liquid form. Okay, phospholipid हमारी मेम्ब्रेन को बहुत लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, बट इट नीड सम स्ट्रेंथ. सो इन बिटवीन कोलेस्ट्रॉल इनकॉर्पोरेट होके मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ देता है, सिग्नलिंग प्रोसेस को इजी करता है. ओके, सो कोलेस्ट्रॉल विल गिव सम सॉलिडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ओके, दीज आर द मेजर फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ओके, अब हम देखते हैं कि एलडीएल एचडीएल. हैव यू हर्ड एलडीएल एचडीएल? व्हाट इज एलडीएल? फुल फॉर्म? Low density lipoprotein. What is HDL? So these are lipoproteins. Okay, what it contains? क्या होता है अंदर lipoproteins में? Cholesterol, triglycerides, okay, and phospholipids also. So LDL also contain cholesterol and HDL also contain cholesterol. तो जितना भी कोलेस्ट्रॉल पूल है ये सब बॉडी में किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? लाइपोप्रोटीन्स के थ्रू. LDL, HDL, VLDL. When you will read lipoproteins, I think next class is lipoproteins for you. So that time you will see कि जो कोलेस्ट्रॉल पूल है बॉडी का ये ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है? दिस lipoproteins के थ्रू. Okay, there are two enzymes, ACAT and LCAT. आपका जब आएगा फर्दर मेटाबॉलिज्म, at least you should remember these two enzymes, ACAT and LCAT. What is the function of ACAT? ACAT का क्या फंक्शन होता है बताओ? It is incorporate cholesterol in the LDL molecule. कोलेस्ट्रॉल का LDL मॉलिक्यूल में जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो किस एंजाइम के कारण होता है? किसके थ्रू होता है? ACAT. And what about LCAT? HDL. Exactly. In HDL molecule, this LCAT will help to incorporate cholesterol. So these are two important enzymes, and we say HDL is good and LDL is bad. Why? Because what happens? HDL क्या करता है? जितना भी पेरिफेरल टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल होता है, it will take and it will enter into liver. And what will happen in the liver? Liver will form bile salts. Okay, liver bile salts बनाता है and it will excrete through bile. Okay, bile में क्या क्या होता है? Bile pigment and bile salts. Okay, तो बाइल के थ्रू ये इंटेस्टाइन में चला जाता है, कुछ रीअब्सॉर्ब होता है एंड सम विल एक्सक्रीट. तो इस तरह से हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट हो जाता है. एंड इन द केस ऑफ एलडीएल इट विल टेक कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर एंड इट विल डिपॉजिट इन द वेरियस टिश्यूज. सो एलडीएल विल रेस्पॉन्सिबल फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस एंड सम ऑल द बैड इफेक्ट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल. सो दैट इज व्हाई वी से LDL is bad cholesterol and HDL is good cholesterol. क्योंकि क्या हो रहा है इसके अंदर? LDL will distribute the cholesterol to the all the body tissue and get it deposited. And HDL what is doing? ये सारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेकर के लीवर को प्रोवाइड कर रहा है एंड लीवर विल फॉर्म बाइल salts and through bile salts cholesterol will excrete through body. Okay. So average diet contain about 300 milligram of cholesterol per day, and that too body has to synthesize about 700 milligram per day. क्योंकि हमारी जो डाइट है वो रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल नहीं करती है, तो बॉडी हैज टू सिंथेसाइज एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल 700 milligram per day. About 500 milligram of cholesterol is excreted through bile. Some of this partly reabsorbed from intestine through hepatoportal circulation. Okay, remaining is converted to bile acids and excreted in the bile as bile salts. Now again we can revise the importance why we read this topic, because cholesterol is very important for the body. It is a human sterol. Okay, it is a major constituent of the plasma membrane and of the plasma
lipoproteins. It is a precursor of bile salt. What is bile acid? What is bile salt? Sodium and potassium जब add हो जाता है, it will form bile salts. Otherwise, it is a bile acid. What is bile pigment? Exactly. Where it come from? कहाँ से आता है? After degradation of hemoglobin, bile pigment will form and bile salt. Bile pigment is a waste product, and bile product body synthesize कर रही है. It is required, okay, for emulsification of fat. It is a precursor of steroid hormones that includes adrenocortical hormones, sex hormones, placental hormones. Also a precursor of vitamin D. Okay, today you all go and at least read the initial steps of formation of vitamin D. It is required for nerve transmission also. Cholesterol is a major constituent of gallstone. Only in case of excess. अगर excess cholesterol अगर gallbladder में deposit हो जाता है, it will form into stones. Okay. It has chief role in pathological process. As you told initially, attack. हमें क्या समझ में आता है केवल heart attack या फिर stroke. Okay. So as a factor in the genesis of atherosclerosis of vital arteries causing cerebrovascular, coronary and peripheral vascular diseases. Okay. Any confusion? No, ma'am. Shall I ask questions? No, ma'am. Okay, now tell me the 5 stages of synthesis. Only one question is there. कौन सी होती है? फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? Synthesis of HMG coenzyme A. Am I right? Okay, second is synthesis of mevalonate. Third is, okay, fourth is, and fifth is cholesterol. Backside, who will tell me 5 stages? Main 5 steps कौन बताएगा? Backside. Nobody? Regulation, 4 types of regulation, who will tell me? Anybody from backside? Front side? कौन बताएगा? 5? Okay, tell me. Very good. Competitive inhibition, feedback inhibition at the level of transcription, and fourth is covalent modification through hormones. Okay, very good. Sit down. Okay, so major hormones are clapping. Very good. Okay, very good. Now, okay, now maintain silence, please. Okay, what are the major hormones? 2 hormones. Okay, insulin क्या करता है enzymes के साथ covalent modification में? Dephosphorylation. And what about glucagon? Phosphorylation. ये आपको पूरे metabolic process में ये सारी जो मैंने आज key points बताए हैं, you should remember. Okay, कि what is the function of glucagon, what is the function of insulin at the level of enzymes. Okay, some enzymes get activated, some deactivated. Okay, now what is the byproducts of cholesterol? क्या क्या बनता है कोलेस्ट्रॉल से? क्या क्या बनता है? बैक साइड कौन बताएगा अच्छे से? नोबडी? हु इज आसिफ? ओके, फ्रंट साइड कौन बताएगा? फ्रंट साइड से भी आसिफ बताएगा, बैक साइड से भी आसिफ बताएगा. देयर आर 2 आसिफ इन द क्लास. Okay, okay, no shouting, please. Okay, afterwards. ये सब बाहर, ठीक है? चलो, क्या क्या बनता है? बाय प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं कोलेस्ट्रॉल के? Did I say something wrong? कोलेस्ट्रॉल के बाय प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज, ओके आसिफ. सेकंड इज, नाउ प्लीज लिसन. This is the last question.
What are the byproducts of cholesterol? Please be serious. No, no, no. This is not acceptable. Now, please maintain discipline. First is bile salt. Second is vitamin D. Third is steroid hormones. Fourth is okay, incorporated in the cell membranes. Okay, fine. Attendance दे दिया था हिमांशी? Have you completed the attendance? Okay, completed, pass.